Okay, we'll start the remaining portion. We finish this last lecture's remaining part, that is connection termination. It is very important actually. After the connection establishment and data transfer, you must terminate the connection. So we'll use the same diagram, having a client process and server process. Now here what happens, in a common situation, the client TCP, after receiving a close command from the client process, it sends a first segment that is called as fin. So this fin segment, in which the fin flag is set as 1, that can be sent by the client process to the server process. So here this fin segment, this particular fin segment can include the last portion or the part or the chunk of data sent by the client, or it can be just a control segment. If it is only a control segment, it consumes only one sequence number. For example, here sequence X, as we know about this one, sequence X and acknowledge Y. So this after receiving some we can say the request from the server or from the client. Actually client is always in active mode. So client want to terminate now the connection. So this particular segment will be sent from client process to the server process. So this is called as active close. This is nothing but active close. So here the closing of that connection is initiated by client process. So here it is always a passive, so we can say passive close after receiving this particular segment from the client process, including the fin. This is a very important fin, that means a finish. So this fin is set to 1, that means this flag is set to 1. This client now wants to terminate the connection. After receiving this segment by the server process, this passive close acknowledgement is provided to the client process by server process. The server TCP, after receiving this fin segment, it informs its process. ये क्या करेगा इसको, हम कहेंगे उसको सर्वर ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सर्वर प्रोसेस को इन्फॉर्म करेगा कि ये ऐसा सेगमेंट आया है एंड वांट्स टू क्लोज द कनेक्शन. सो it informs its process of the situation and send the second segment including the fin plus acknowledgement. So here इसका एक्नॉलेजमेंट, जो सेगमेंट इसको रिसीव हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट, और साथ में फिन, फिनिश और एक्नॉलेज, ये दोनों सेंड होगा फिन प्लस ACK segment to confirm the receipt of the fin segment from the client. At the same time, to announce the closing of the connection in the other direction. Now this passive close is now initiated by this server process. This segment, this particular segment can also contain the last part of the data from the server. ये अभी एक्नॉलेज सेंड करने के लिए तैयार है, ये भी एक्नॉलेज सेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ये एक्टिव क्लोज और पैसिव क्लोज हो जाता है, नाउ इट इज नॉट, it will not send the data. Okay, if it does not carry data,
अगर ये डेटा कैरी नहीं करता, देन वी कैन से इट कंज्यूम्स ओनली वन सीक्वेंस नंबर। तो ये एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करेगा डेटा अगर यहाँ पे, अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक्टिव क्लोज हो गया, पैसिव क्लोज भी हो गया सर्वर साइड से, तो डेटा तो जाएगा नहीं वहाँ पे, सिंपली एक्नॉलेजमेंट ही यहाँ पर सेंड हो सकता है एंड इट कंज्यूम्स ओनली वन सीक्वेंस नंबर। सो आफ्टर दिस वन, दिस क्लाइंट, तो जैसे इसको मिलेगा ये, तो ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। इसको जैसे ये पैकेट मिलेगा, ये सेगमेंट मिलेगा सर्वर साइड से, तो वी कैन से कनेक्शन क्लोज्ड, कनेक्शन यहां पे क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन क्लोज, ये सिग्नल इसे मिलेगा क्लाइंट प्रोसेस को, सो this client TCP also sends the last segment, this one, third segment, this last segment, we can say it is acknowledgement. It is only ACK to confirm the receipt of this one fin segment from the TCP server. TCP server से जो fin segment आया है and including the acknowledgement of the previous fin segment from the client process, तो इसका एक acknowledge यहाँ पर आएगा। तो ये acknowledgement इसको रिसिप्ट है कि ये इसको मिला है, ये सेंड कर देगा इसको। और जैसे ही यहाँ पर ये acknowledgement, ये पर्टिकुलर सेगमेंट सर्वर को मिलेगा, दिस सेगमेंट कंटेंट्स द एक्नॉलेजमेंट नंबर y+1। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर x कुछ भी हो सकता है, जनरली जो सीक्वेंस यहाँ से हुआ था वही हम इसको भी अप्लाई करेंगे, और इंक्रीमेंट बाय 1, दैट मीन्स सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट जो आएगा इसका, सीक्वेंस नंबर जो सेंड हुआ था इसका +1 वहाँ पे आएगा, हमने पिछली बार देखा ये। तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर कंटेंट करेगा विच इज 1 plus the sequence number received in the fin segment from the server side. This segment cannot carry data, this also not carry data, but and also no consumes any sequence numbers. So here we can say connection closed. Now we can see here a connection क्लोज। तो यहाँ पर तीनों हमने यहाँ पे देख लिए। टीसीपी कनेक्शन में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, कैसे होगा, यूजिंग द डायग्राम हमने ये इसको एक्सप्लेन किया था। डेटा ट्रांसफर कैसे होता है वो भी हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में देखा, और कनेक्शन, ये अभी कनेक्शन टर्मिनेशन। तो इस तरीके से ये तीनों फेजेस कंप्लीट होती हैं जैसे हम डेटा कुछ ट्रांसफर करते हैं यूजिंग द TCP. Today's topic actually is regarding the all these three things, three phases, and that is nothing but the what we can say that is TCP connection transition, state transition. So in a state transition, initially there's two parties, that is one is client, another is server. Both parties are in a closed state. So we will explain this state transition diagram. So we will see this state transition diagram. Actually what happens here, ये थोड़ा सा आपको केयरफुली सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना आपको कॉम्प्लिकेट दिखेगा उतना कॉम्प्लिकेट तो है नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इनिशियली व्हाट हैपन्स, टीसीपी हमें ये पता है, टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर, ये दो पार्टीज है। हम डेटा सेंड करने वाले और रिसीव करने वाले भी
और जो नेक्स्ट पार्टी है वो टीसीपी सर्वर है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे, तो बोथ टीसीपी क्लाइंट एक्चुअली ओपन करता है और टीसीपी सर्वर कनेक्शन को पैसिवली ओपन करता है। हमने ये देखा, ठीक है ना, कि टीसीपी क्लाइंट, दो पार्टीज है ना, टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर। तो टीसीपी क्लाइंट क्या करता है, एक्टिवली कनेक्शन को ओपन करता है और टीसीपी सर्वर कनेक्शन को पैसिवली ओपन करता है। कनेक्शन का इनिशिएटिव हमेशा ये क्लाइंट ही लेता है, क्योंकि क्लाइंट को जरूरत है यहां पे। तो हम यहां पे उसका जो तीनों जो फेजेस हैं, हम इसको डायग्राम, उसको हम कहेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसमें हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला तो हम कहेंगे, पहला स्टेट जो है वो क्लोज्ड है। थोड़ा सा डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शायद मैं प्रॉपरली ड्रॉ ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे डायरेक्शंस यूज करने वाला हूँ फ्रॉम एंड टू, अगर मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज अ क्लाइंट ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर मैं यहां पर रेड पेन यूज करता हूं तो वो है सर्वर ट्रांजिशन। यहां पे ये इसको हम सर्वर ट्रांजिशन, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर मैं ब्लैक डायरेक्शन देता हूँ, बाय ब्लैक अगर मैं कुछ लाइंस खींचता हूँ, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्लाइंट का इनिशिएटिव है, क्लाइंट कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा है। और अगर मैं रेड पेन यूज करता हूँ लाइंस खींचने के लिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ सर्वर, हम कहेंगे सर्वर कैन इनिशिएट टू ट्रांसफर द डेटा और द डायरेक्शन फ्रॉम सर्वर टू अदर डिवाइसेस। तो यहां पे तो हमेशा क्लाइंट ही इनिशिएटिव लेता है शुरू में, क्लाइंट और सर्वर दोनों इनिशियली व्हाट हैपेंस, क्लाइंट और सर्वर ये हमेशा दोनों, क्लाइंट और सर्वर दोनों क्लोज स्टेट में होते हैं। ये पहला स्टेट हुआ क्लोज स्टेट, तो पहले दोनों क्लोज। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा कम गिरेगा, शायद बोर्ड कम गिरेगा इसको डायग्राम के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में छोटा सा ये बॉक्सेस बनाता हूं। तो पहले हम कहेंगे कि कनेक्शन का इनिशिएटिव तो हमेशा क्लाइंट ही लेता है, और शुरू में क्लाइंट और सर्वर दोनों क्लोज स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेट तो क्लोज स्टेट हुआ, और दूसरा स्टेट यहां पे सीन सेंट, सीन कमांड है, सॉरी सीन रिक्वेस्ट है, सीन सेंट। नेक्स्ट स्टेट क्या हुआ यहां पे, सीन स्टेट। तो एक्टिव ओपन में क्लाइंट है और सीन ये क्या करेगा, सीन सेंड करेगा। तो क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो क्लाइंट ट्रांजिशन है यहां पे। तो मैं ब्लैक पेन यूज किया मैंने, तो क्लाइंट है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पर एक्टिव ये क्या करेगा, हमें पता है ये एक्टिव ओपन रिसीव करेगा, सॉरी सीन क्या करेगा यहां पे, एक्टिव ओपन तो है, रिसीव करा मतलब एक्चुअली रिसीव्ड ही है वो, ये सिग्नल एक्टिव ओपन ही है। ये इनिशिएट किया और सेंड क्या किया, सिन सिग्नल, सिन फॉर सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि यहां पे ओपन करना है, कनेक्शन ओपन करना है, तो यहां पर ये सिन सिग्नल यहां पे सिन को सेंड करेगा। सो जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, जब भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा,
या फिर करना है तब सीन सेंड करना पड़ेगा। ये सीन को सेंड करना पड़ेगा किसी भी क्लाइंट को, क्लाइंट से सर्वर तक। जैसे ही क्लाइंट सीन सेंड कर देगा, जैसे ही क्लाइंट सीन सेंड कर देगा, वो सीन सेंट में आ जाएगा। तो इसका स्टेट अभी बदल गया, किसका, क्लाइंट का क्या हुआ, सीन स्टेट, सीन सेंट, दिस इज अनदर स्टेट। ओके, अब सर्वर ये तो क्लाइंट का हुआ। अब सर्वर का तो एक और स्टेट आता है यहां पे, हम इसको छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं यहां पे, और ये है लिसन। दिस इज लिसन। अब ये जो लिसन है, दिस लिसन इज नथिंग बट वो कनेक्शन, सर्वर क्या करेगा, कनेक्शन को लिसन करेगा, कनेक्शन का लिसन करेगा कि वेदर देयर इज एनी कनेक्शन फ्रॉम द अदर क्लाइंट, इफ एनी। तो यहाँ पे, और ये हमें पता है, और हमें ये पता है कि सर्वर पैसिव ओपन में है, तो कहाँ जाएगा वो, पैसिव ओपन में है तो वो जाएगा लिसन स्टेट में। तो मैं अभी रेड पेन यूज कर रहा हूं यहां पे, लिसन स्टेट में, ठीक है ना। तो यहां पर अभी पहला तो ये हुआ एक्टिव ओपन, और यहां पर हम क्या कहेंगे, पैसिव ओपन, सर्वर के लिए पैसिव ओपन, पैसिव ओपन। और कुछ सेंड करता है, नहीं, सर्वर कुछ सेंड नहीं करता, ब्लैंक है, ठीक है ना। सर्वर कुछ सेंड नहीं करता, सिर्फ ये कनेक्शन को ओपन करता है, लेकिन सेंड नहीं कर पाता। ये हमने पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में देखा हमने ये। लेकिन यहां पर जब एक्टिव पार्ट लेता है कौन, क्लाइंट, तो क्लाइंट एक्टिव ओपन करता है और साथ साथ में क्या करता है, ये सीन को भी सेंड करता है। तो हम किसको कहेंगे, सेंड। अब जब मैं नेक्स्ट लिखा स्लैश के बाद जब लिखूंगा दैट इज द सेंट, और स्लैश के पहले लिखूंगा दैट इज रिसीव्ड, क्योंकि मैं इतना अभी जगह नहीं यहाँ पे लिखने के लिए, तो मैं पहले ही बता देता हूं यहाँ पे कि ये रिसीव्ड है और ये सेंट है, ठीक है ना। ये रिसीव्ड करेगा और ये सेंट होगा, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे ही कनेक्शन का रिक्वेस्ट आ जाएगा, कनेक्शन का रिक्वेस्ट यहां से आ जाएगा, यहां पे ट्रांजिशन स्टार्ट कर देगा, सर्वर ट्रांजिशन स्टार्ट कर देगा, तब तक ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही सर्वर को सीन रिक्वेस्ट मिलेगा, जैसे ही सर्वर को सीन रिक्वेस्ट मिलेगा, उसका एसीके, इसका एसीके सर्वर सेंड कर देगा और सीन रिसीव्ड स्टेट में आ जाएगा। तो और एक स्टेट आएगा यहां पे, सीन रिसीव्ड। अब रिसीव्ड RCVD लिख देता हूं मैं। सीन सेंट किसने किया, ये किया क्लाइंट ने, साथ साथ में सर्वर भी पैसिव ओपन में गया। अब पैसिव ओपन में वो लिसन में गया, लिसन स्टेट में गया, और जैसे ही ये सीन रिक्वेस्ट इसको मिला, सर्वर को मिला, तो अब यहां पर क्या होगा, सर्वर किस स्टेट में चला जाएगा, सीन रिसीव्ड स्टेट में जाएगा, सीन रिसीव्ड स्टेट में जाएगा। जैसे ही सर्वर को सीन रिक्वेस्ट मिलेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट ये सर्वर सेंड कर देगा, और सर्वर कहां जाएगा, सीन रिसीव्ड स्टेट। ये जो बॉक्सेस जो मैं बना रहा हूं दैट इज द स्टेट, दीज आर द स्टेट। तो ये स्टेट यहां पे इस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। सो क्लाइंट रिसीव्ड, अब यहां पर सिग्नल क्या आएगा, यहां पे सीन रिसीव्ड हुआ, करेक्ट,
सीन रिसीव्ड हुआ और सेंड क्या करेगा, ये सर्वर क्या सेंड कर रहा है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, सर्वर की बात कर रहा हूं मैं, क्या करेगा, सीन, ये भी तो करेगा ना, इसको भी सिंक्रोनाइज करना ही है, और साथ में इसका एक्नॉलेजमेंट प्लस एसीके ये क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, ये कौन करेगा, सर्वर करेगा। जैसे ही ये सीन इसको मिलेगा, रिसीव्ड हुआ, सीन क्या हुआ, ये रिसीव्ड हुआ, और ये सेंड क्या करेगा, खुद का सीन और इसका एक्नॉलेज, करेक्ट। और सीन रिसीव्ड, ये तो कनेक्शन ये रिसीव्ड होगा और ये सेंड कर देगा, एसीके, सीन प्लस एसीके सेंड कर देगा, और जो कनेक्शन भेजा उस कनेक्शन के एक्नॉलेजमेंट भेज करके सेंड करने के बाद क्लाइंट एस्टैब्लिश स्टेट में चला जाएगा। फिर और एक स्टेट आएगा यहां पे, एस्टैब्लिश्ड। तो ये पहला वहां पे था, ये 3 फेज में से एक पहला फेज यहां पे अभी हो चुका है, एस्टैब्लिश। तो यहां पर अभी एक्चुअली हम कहेंगे आफ्टर दिस वन, आफ्टर दिस वन, this enters into this state, server enters into established state, ये established state में आ जाएगा। क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन तो हो गया, क्लाइंट की तरफ हो चुका है, क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन हो चुका है। अब सर्वर की तरफ से जो कनेक्शन आया था उसके रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट भेज करके एस्टैब्लिश स्टेट में आ जाएगा। अब यहां पे सर्वर तो आ गया, अब बारी किसकी है, क्लाइंट की। तो क्लाइंट भी कहां आएगा, एस्टैब्लिश स्टेट में आ जाएगा। अब एस्टैब्लिश स्टेट में आएगा तो इसका मतलब इसने क्या रिसीव्ड किया, सिन प्लस एसीके, ये रिसीव्ड किया। सेंड क्या करेगा, सेंड क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट, सेंड होगा एक्नॉलेजमेंट। तो सिन प्लस एसीके सर्वर से रिसीव्ड हुआ और एक्नॉलेजमेंट, इसका एक्नॉलेजमेंट, इस जो रिसीव्ड हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट किसका, किसके थ्रू, क्लाइंट के थ्रू। ये क्लाइंट का, क्लाइंट इसको सेंड कर देगा। ये सेंट है, ये रिसीव्ड है, यहां पे लिखा मैंने ये सेंट और ये रिसीव्ड। तो ये इसको रिसीव्ड हुआ, ये जो कि सेंट हुआ था, सर्वर ने सेंड किया था क्लाइंट को, तो ऑब्वियसली क्लाइंट को रिसीव्ड होगा और उसका एक्नॉलेज ये सेंड करके किस स्टेट में चला जाएगा, अभी ये एस्टैब्लिश्ड स्टेट में चला जाएगा। तो क्लाइंट की तरफ से भी एक कनेक्शन तो हो गया, क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन हो गया, सर्वर की तरफ से भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहां पर सर्वर की तरफ से जो कनेक्शन आया था, सर्वर की तरफ से जो कनेक्शन आया था यहां पे, उसके बदले इसका हम कहेंगे एक्नॉलेजमेंट भी यहां पे सेंड कर दिया क्लाइंट ने, और यहां पर एस्टैब्लिश स्टेट में दोनों आ गए। इसका मतलब कनेक्शन अभी दोनों है। सर्वर को जो क्लाइंट ने एक्नॉलेजमेंट भेजा था, ये वाला सर्वर को भेजा ना, भेजा एक्नॉलेजमेंट भेजा था, सर्वर ने रिसीव किया, और सर्वर भी उसको रिसीव करने के बाद एस्टैब्लिश स्टेट में आ गया। मतलब दोनों तरफ से अभी ये एस्टैब्लिश हो चुका है। इस स्टेट पे, इस पर्टिकुलर स्टेट पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। यहां तक कनेक्शन अभी एस्टैब्लिश हो चुका है।
और क्लाइंट और सर्वर दोनों डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं फिर से, डेटा कैन ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर। अब यहां पर डेटा ट्रांसफर हो सकता है, तो दूसरा फेज क्या है हमारा, डेटा ट्रांसफर का। तो स्टेट पे कनेक्शन अभी एस्टेब्लिश हो चुका है और क्लाइंट और सर्वर दोनों डेटा ट्रांसफर अभी यहां पे कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर करने के बाद अब बारी आती है कनेक्शन टर्मिनेशन की। अब यहां पर ऐसा मान के चलो कि भी डेटा ट्रांसफर कर लिया। अब डेटा ट्रांसफर हो गया यहां पे, तो और टर्मिनेशन, थर्ड फेज क्या है यहां पे, टर्मिनेशन का। तो टर्मिनेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट फिनिश पैकेट भेजता है, क्लाइंट फिनिश पैकेट यहां पे भेजेगा। अब थोड़ा सा मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लूं। ये पहला स्टेप है हमारा जो कि एक्टिव ओपन है, यहां पे सीन स्टेट में जाएगा कौन, क्लाइंट सीन स्टेट में, सीन सेंट में जाएगा, इस स्टेट में जाएगा। साथ साथ में ये सेकंड स्टेप में हमने ये देखा कि सर्वर पैसिव ओपन करता है, जो कि एक्चुअली डेटा कोई ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन ये ओपन होता है, कनेक्शन ओपन होता है। और फिर लिसन स्टेट में से, क्योंकि इसने सेंड किया है तो इसको ये रिसीव होगा। और ये थर्ड स्टेप में हमने देखा कि सीन प्लस एक्नॉलेजमेंट ये सेंड होगा क्लाइंट को सर्वर के थ्रू। जैसा इसको मिलेगा, ये रिसीव हुआ सीन प्लस एसीके फ्रॉम द सर्वर, तो ये एक्नॉलेजमेंट के साथ में ये कहां जाएगा, एस्टैब्लिश्ड स्टेट में जाएगा, कौन, क्लाइंट। अब यहां पर इसको एसीके मिला है, एसीके मिला है, तो एसीके रिसीव्ड हुआ, किसको, सर्वर को एसीके रिसीव्ड हुआ। क्लाइंट ने सेंड किया, सर्वर को एसीके मिला, लेकिन अभी ये कुछ डेटा सेंड नहीं करने वाला, तो इसको मैं ब्लैंक रखता हूं, स्लैश नथिंग, कोई डेटा यहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। लेकिन एक्नॉलेजमेंट यहां पे मिलने के बाद सर्वर एस्टैब्लिश स्टेट में जाएगा। अब यहां पर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर अभी डेटा ट्रांसफर होगा। ये हो गया, ये पांचवा स्टेप है, फॉर एग्जांपल 5, डेटा ट्रांसफर हो चुका है। अब जब डेटा ट्रांसफर हो चुका है, सबसे पहले अभी टर्मिनेशन भी होना है। थर्ड फेज क्या आएगी, टर्मिनेशन की। तो सबसे पहले क्लाइंट फिनिश पैकेट भेजता है और फिर फिन वेट स्टेज में आ जाता है। तो फिन वेट फर्स्ट, तो ये एक स्टेट है। फिन, फिन मीन्स फिनिश, फिन वेट 1, फिन वेट 1, इस स्टेट में ये सर्वर जाएगा, सॉरी क्लाइंट जाएगा, क्योंकि क्लाइंट इनिशिएट करता है ना फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहले क्लाइंट फिनिश पैकेट भेजेगा और किस स्टेट में जाएगा, फिर वो फिन वेट में जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कनेक्शन को क्लोज करना है। ये सेंड किया, फिन रिसीव्ड हुआ, ये एक्चुअली इसके बाद, क्योंकि अभी डाटा ट्रांसफर हो चुका है, फॉर एग्जांपल डेटा ट्रांसफर हो चुका है, हमें अभी टर्मिनेट करना है, तो क्लाइंट इनिशिएटिव लेता है और फिन ये सेंड करता है, फिन सेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्लोज रिसीव्ड हुआ है, फॉर एग्जांपल क्लोज, क्योंकि क्लोज करना है ना। तो जैसा यहाँ पे एक्टिव ओपन होता है, तो एक्टिव तो ओपन पहले ही है ना, तो यहाँ पर क्लोज करना है। और फिन क्या सेंड किया उसने, क्लाइंट ने फिन, और किस स्टेट में गया फिर वो क्लाइंट, फिन वेट 1, क्योंकि अभी पूरा वेट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि सर्वर के बारे में अभी सोचा नहीं हमने
कि उसने बंद किया नहीं किया। अब इसके लिए फिन वेट 1, ठीक है। अब सर्वर को जैसा ही फिन, ये किसको भेजेगा? सर्वर को, क्योंकि उसको टर्मिनेट करना है ना, कनेक्शन क्लोज करना है, उसको क्लोज करना है, तो फिनिश ये रिक्वेस्ट भेजेगा। और जैसे ही ये फिनिश रिक्वेस्ट मिलेगा किसको? सर्वर को, तो सर्वर भी कहाँ जाएगा? दूसरे स्टेट में चला जाएगा। दैट इज जो क्लाइंट ने फिन सेंड किया था ये, वो सर्वर को रिसीव होता है, और सर्वर एस्टैब्लिश स्टेट से जैसे ही सर्वर फिन रिसीव करता है, सर्वर उसके करस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट भी भेज देता है, ठीक है। तो यहां पर अभी रेड पेन यूज करता हूं मैं सर्वर के बारे में। सर्वर, तो सर्वर क्या रिसीव करेगा? यहां पे फिन सेंड क्या करेगा? इसका एक्नॉलेजमेंट एसी के, तो ये बना 7th स्टेप, ठीक है। और ये स्टेट कौन सा है? क्लोज। ये रिक्वेस्ट मिली है उसको, क्लोज वेट, so it enters into another state. Server enters into another state, that is close wait. जैसे ही क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करता है, दिस वन इट इज सेंट बाय सर्वर, रेड लाइन दिख रहे हैं ना, सर्वर। तो इसको रिसीव हुआ फिन फ्रॉम द क्लाइंट एंड इट सेंड्स एक्नॉलेजमेंट, सो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड बाय क्लाइंट नाउ। सो जैसे ही क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करता है, क्लाइंट फिन वेट में आ जाता है, ठीक है ना। तो फिन वेट कौन सा? और फिन वेट 2, फिन वेट 2। तो क्लाइंट यहां पर फिन वेट 2 में आ जाता है। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट उसको मिलेगा, ये 8वीं स्टेप है। जैसे ही क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करता है, क्लाइंट फिन वेट में आ जाता है। अब यहां पे देखिए, क्लाइंट ने कनेक्शन टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट भेजी है, क्लाइंट ने कनेक्शन टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट भेजी है, और सर्वर ने उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा है। तो क्लाइंट साइड से कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, क्लाइंट साइड से टर्मिनेट हो गया, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। अब ये डेटा भेज सकता है क्या? नहीं, ये डेटा नहीं भेज सकता है। क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन टर्मिनेट हुआ, इसका मतलब क्लाइंट इज इन फिन वेट 2, इस स्टेट में आ गया। क्लाइंट किस स्टेट में आ गया? फिन वेट 2 स्टेट में आ गया। अब यहां पे क्या है? रिसीव्ड क्या था? एससीके, लेकिन डेटा कुछ सेंड नहीं करेगा। क्लाइंट से रिसीव्ड हुआ है, सॉरी सर्वर से एसीके रिसीव्ड हुआ है। जैसे ही एसीके रिसीव्ड होता है इसको, क्योंकि ये एसीके किसका है? फिन का है। फिन किसने भेजा? क्लाइंट ने भेजा। तो क्लाइंट ने भेजा सर्वर को क्लोज करने के लिए, कनेक्शन क्लोज करने के लिए। तो सर्वर ने भी क्या किया? फिन को रिसीव्ड किया और इसके रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है क्लाइंट को, ये क्या करेगा? ये कौन सा स्टेट में आएगा? फिन वेट 1 से फिन वेट 2 में। दैट मीन्स अ फाइनल क्लोजिंग ऑफ द कनेक्शन। सो क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन टर्मिनेट हुआ। अब इसका मतलब ये टर्मिनेशन हुआ, इसका मतलब ये फिन वेट 2 में आ गया, इस स्टेट में आ गया। एंड सर्वर इज इन क्लोज वेट स्टेट। सर्वर कहां पे है फिलहाल? क्लोज वेट स्टेट में है। इसका मतलब क्या? क्लाइंट डेटा सेंड नहीं कर सकता, क्लाइंट अभी डेटा सेंड नहीं कर सकता, और सर्वर कैन सेंड डेटा, लेकिन सर्वर अभी क्लोज वेट में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा क्लोज हो गया। सर्वर कैन सेंड
द डेटा आल्सो। क्लाइंट सिर्फ उसके रिस्पॉन्ड में एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो सर्वर की तरफ से अब यहां पर एक ये है ना कि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। तो ये क्लाइंट सर्वर जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो हमें पता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा सेंड होगा ऐसे और डेटा रिसीव होगा ऐसे। ये हुआ हाफ डुप्लेक्स। तो ये दोनों तरफ से है, यहां से भी हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो ये एक्चुअली अगर हम ऐसे करेंगे तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। ये फुल डुप्लेक्स है, ये हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मतलब एक फुल डुप्लेक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं अभी हम यहां पे। हाँ चलो, तो यहां पे इसको हम कहते हैं हाफ क्लोज। हाफ क्लोज, हाफ क्लोज किसे कहेंगे? इफ क्लाइंट डज नॉट वांट टू make the connection with server now and client does not want to send the data segments, तब यहां पर ये कनेक्शन क्लोज करेगा। कौन क्लोज करेगा? क्लाइंट, जो कि यहां पे हो चुका है। ये कनेक्शन यहां पे क्लोज हो चुका है, क्लोज हो चुका है अभी यहां पे। तो यहां पर इसको हम कहेंगे, लेकिन स्टिल सर्वर इज रेडी टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट, डेटा सेगमेंट्स टू द क्लाइंट। आधा ही हुआ है तो इसको हम कहते हैं हाफ क्लोज। दिस इज कॉल्ड एज हाफ क्लोज। इसका मतलब क्लाइंट डेटा सेंड नहीं कर सकता और सर्वर कैन स्टिल सेंड द डेटा। क्लाइंट सिर्फ उसके रिस्पॉन्ड, उसको जो रिस्पॉन्ड आया उसको ही ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो सर्वर की तरफ से हाफ डुप्लेक्स अभी लाइव है। हाफ डुप्लेक्स यहां पे क्लोज हो चुका है और यहां पर हाफ डुप्लेक्स अभी लाइव है। तो ये इसको हम कहेंगे हाफ क्लोज। तो ये अभी कॉन्सेप्ट यहां पे हाफ क्लोज, ये क्योंकि यहां पे सर्वर अभी क्लोज वेट में है, उसने पूरा क्लोज नहीं किया। सो यहां पे थोड़ी देर बाद हो सकता है अभी उसके बाद वो दूसरा भी कनेक्शन जो हाफ डुप्लेक्स है वो भी क्लोज करेगा सर्वर। थोड़ी देर बाद सर्वर भी कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता है सपोज, तो क्या करेगा? फिन सेंड कर देगा। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्लोज करने के लिए फिन, तो फिन सेंड करेगा। तो फिन कौन करेगा सेंड? ऑब्वियसली सर्वर। तो सर्वर सेंड करेगा फिन और वो स्टेट में चला जाएगा लास्ट एक्नॉलेज। तो ये है 9 नंबर, ठीक है। तो यहां पर क्लोज एंड कौन सी आएगा यहां पे? क्लोज एसी के क्लोज, और सेंड क्या करेगा? सॉरी, यहां पे एसी के नहीं, यहां पे सेंड करेगा फिन। यहां पे फिनिश। रिसीव्ड क्या किया उसने? क्लोज, क्योंकि उस इंटेंशन ये है कि इसको क्लोज करना है अभी कनेक्शन, किसको? सर्वर को। तो ऑब्वियसली ये क्या सेंड करेगा? फिन, फिन सेंड कर देगा। जो फिन सर्वर ने भेजा क्लाइंट ने इस स्टेज पे रिसीव किया फॉर एग्जांपल। अब ये रिसीव करने के बाद ये रिसीव कर दिया किसने? क्लाइंट ने भी। तो और टाइम वेट में, तो यहां पे अभी जैसा ये क्लोजिंग में हम कहेंगे उसको टाइम वेट, तो उसको वेट करना पड़ेगा। किसको? क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा कुछ देर तक। तो ये टाइम कुछ सेकंड भी हो सकता है, कुछ मिली सेकंड भी हो सकता है, जब तक ये पूरा क्लोज ना हो जाए। तो ये क्लाइंट किस स्टेट में चला जाएगा? फिर
फिन वेट 2 से टाइम वेट में जाएगा। तो इसने क्या रिसीव किया? फिन। ये फिन रिसीव किया यहाँ पे किसने? क्लाइंट ने। और क्या सेंड करेगा यहाँ पे? इसके रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट कि मुझे ये सिग्नल मिल चुका है। तो ऑब्वियसली इट इज नंबर 10 आफ्टर दिस वन। ये मैं नंबर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये आपको समझने के लिए कि इसके बाद क्या आने वाला है, मतलब ये होने के बाद क्या होगा इसके, क्योंकि ये एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग है। तो ये याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए कि ये फिन क्लाइंट को मिलेगा कि हाँ सर्वर भी चाहता है कि अभी टर्मिनेट हो जाए, क्लोज कनेक्शन को क्लोज करे, तो ये इसको मिलेगा, रिसीव्ड होगा। किसको? ब्लैक पेन है ना, क्या है? क्लाइंट। तो ये फिर उसको मिलेगा, इसके रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट ये सर्वर को भेज देगा। ठीक है। अब यहां पर साथ में जैसे ये वेट टाइम हो जाएगा, इसका एक पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब ये क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर हम क्लोज कनेक्शन, तो सर क्लाइंट ये कंप्लीटली अभी क्लोज हो चुका है। तो ये हुआ 11 नंबर, 11 नंबर। तो यहां पर क्या है? टाइम आउट। इसने क्या रिसीव किया? टाइम आउट। टाइम आउट है कितना? हो सकता है 2 मिली सेकेंड। सो जो भी टाइम, whatever the time is waiting for the to receive this fin from the server, as soon as it accept the fin, this client accept the fin, it will close its connection. अब ये फाइनल क्लोज हो चुका है। तो ये हम कहेंगे जो एसी के क्लाइंट, जो एसी के क्लाइंट है, सॉरी एसी के क्लाइंट नहीं, एक्नॉलेजमेंट, दिस लास्ट एक्नॉलेजमेंट जो सेंड किया था सर्वर ने, वो रिसीव हुआ और सर्वर भी अभी क्लोज स्टेट में चला जाएगा। जैसे इसको ये मिलेगा एक्नॉलेजमेंट, तो ये भी, अब इसको मैं थोड़ा सा, अब सर्वर भी क्या होगा? क्लोज स्टेट में चला जाएगा। तो ये किसके बदौलत? एसी के। इसको एसी के मिला है, रिसीव तो कुछ, सेंड तो कुछ करना नहीं है। तो ये हुआ 12 नंबर। इसके बाद हम कहेंगे कि क्लाइंट क्लोज हो गया, तो एसी के रिसीव होने के बाद सर्वर भी क्या हुआ? क्लोज हुआ। तो दोनों क्लोज हो गए अभी। तो इसको हम कहेंगे अ ग्रेसफुल वे ऑफ क्लोजिंग द कनेक्शन। दोनों तरफ से प्रॉपरली क्लोज हो चुका है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अब इसको थोड़ा सा मैं ये तो होना ही चाहिए ऐसा। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दो आर्मी हैं, एक है इस साइड से, एक है इस साइड से। ठीक है। और यहां पे बीच में ये वैली है, वैली है, और यहां पर रेड ड्रैगन, हम कहेंगे दुश्मन, यहां पे स्थित है। यहां पर आर्मी 1 है, आर्मी 1, आर्मी 2, एक ही कंट्री के दो बटालियंस, आर्मी 1, आर्मी 2। अब क्या है, यहाँ पे वैली है, इसलिए आर्मी 1 यहाँ नहीं जा सकती, आर्मी 2 यहाँ नहीं जा सकती, लेकिन मैसेज तो सेंड करना है। लेकिन यहाँ पे डिक्रिप्ट करेगा मैसेज और ये रिसीव्ड होगा इस एनिमी, हम इसको एनिमी कहेंगे, एनिमी, एनिमी आर्मी है। अब कैसे होगा अगर इनको हमला करना है, इसके ऊपर एनिमी आर्मी के ऊपर अगर हमला करना है, रेड आर्मी पे अगर हमला करना है, आर्मी 1 आर्मी 2 एक ही देश के दो है, तो लेकिन ये बीच में वैली है और बीच में ये शायद उनका कब्जा है उसके ऊपर,
इसको भगाना है या फिर इसको अटैक करना है, अगर सिंपली वन आर्मी वन अगर इसको अटैक करे तो 100% गारंटी है इसका लॉस होगा। अगर सिंपली आर्मी 2 अगर यहां पे हमला करे तो 100% गारंटी है कि आर्मी 2 यहां पे उसको लॉस होगा। अगर दोनों एक साथ आर्मी 1 और आर्मी 2 दोनों एक साथ इसके ऊपर टूट पड़े तो 100% गारंटी है भाग जाएगा। लेकिन जाए कैसे, ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो, यही तो है ये। अब ये जो है ये ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द कनेक्शन, हम इसको क्या कहेंगे, इट इज द ग्रेसफुल टर्मिनेशन, इट इज ग्रेसफुल वे ऑफ क्लोजिंग द कनेक्शन। तो दोनों एक साथ अगर कोऑर्डिनेशन के साथ अगर इसके ऊपर हमला करे तो ही जा सकता है, जो कि ये होता है। अब हो सकता है इसने हमला कर दिया, इसको पता ही नहीं चला आर्मी 1 को, या फिर आर्मी 1 ने कर दिया आर्मी 2 को पता ही नहीं चला, तो यहां पर एबनॉर्मल टर्मिनेशन का खतरा हो सकता है। तो ये अगर हम टालना चाहते हैं, ये इसको हम अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ही हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर दोनों क्लाइंट और सर्वर टर्मिनेट करते हैं कनेक्शन, यहां पे दोनों क्लाइंट और सर्वर दोनों टर्मिनेट करते हैं कनेक्शन। ये अगर दोनों एक साथ कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं तो क्लाइंट में फिन सेंड किया जाता है, उस फिन का एक्नॉलेज सर्वर ने सेंड किया, ठीक है ना, और तुरंत ही साथ में फिन भी सेंड कर दिया। अगर इस स्टेज पे पर्टिकुलर इस स्टेज पे सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा और क्लाइंट को अभी मिला ही नहीं, हो सकता है जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक्नॉलेजमेंट तो सेंड किया लेकिन क्लाइंट को मिला ही नहीं, मिला नहीं है, लेकिन क्लाइंट को सर्वर का फिन मिल गया, एक्नॉलेजमेंट इसको मिला ही नहीं, और सर्वर को क्लाइंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो ये अगर चीज अगर ऐसे होती है, इसको ये मिला, इसको ये नहीं मिला, इसको ये मिला, इसको ये नहीं मिला, तो फिर यहां पर प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पर ये इसके बाद अगर हम ये सोचे कि इस तरीके से होगा तो ये क्लाइंट, हम कहेंगे इसको सर्वर या क्लाइंट, दोनों तरफ दोनों सर्वर या क्लाइंट क्लोजिंग स्टेट पे जाएगा। अगर ये ऐसा है कि इसने फिन तो सेंड किया लेकिन इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, इसको मिला ही नहीं, अब प्रॉब्लम ये होगा ना कि ये क्लोज कब करेगा, इसने तो क्लोज कर दिया, ये कब क्लोज करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि इस क्लाइंट को ही क्या करना है, क्लोज वेट में चला जाना है। तो क्लाइंट क्लोजिंग स्टेट पे चला जाएगा, क्लोजिंग स्टेट पे चला जाएगा। हो सकता है सर्वर फिन वेट में चला जाए, तो यहां पर ये तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन क्लाइंट ये सर्वर के क्लोज वेट में जा सकता है। तो यहां पर रिसीव्ड क्या हुआ, फिन तो रिसीव्ड हुआ था, और क्या सेंड करना है, सेम यही एसी के। अब यहां पर इसको वेट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ही उसको मिलेगा, क्लाइंट को मिल जाएगा यहां पे कि ये फिन, सर्वर भी फिन सिग्नल सेंड कर रहा है और ये भी फिन सेंड कर रहा है, इसको रिसीव्ड हुआ है और एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट यहां से ही मिल जाएगा सर्वर को क्लोज वेट से ही। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेज में क्लाइंट अपने फिन की एक्नॉलेज का वेट करता है यहां पे, और जैसे ही पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है, पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट मतलब जो इसने सेंड किया लेकिन मिला नहीं, और उसके बाद जैसे ही इसको मिल जाता है, यहां हो सकता है यहां मिल जाएगा उसको, जैसे ही पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी, टाइम वेट किधर गया, टाइम वेट है ये,
ये टाइम वेट स्टेट ये वापस टाइम वेट स्टेट में आ जाएगा और कनेक्शन क्लोज कर देगा। तो बीच में क्या होगा, हो सकता है यहां पर सीन रिसीव्ड और सीन सेंट, इसमें भी सिग्नल आ जा सकते हैं। सो यहां पे एक्चुअली डायरेक्टली क्लोज वेट पे ना जाते हुए यहां पर इस स्टेट में, क्लोजिंग स्टेट में, हम कहेंगे क्लोजिंग स्टेट, क्लोजिंग स्टेट। तो यहां पे ये क्लोजिंग स्टेट में ये जाएगा, ये 13 नंबर क्या लेके जाएगा यहां पे, फिन और एसी के। इस यहां जाने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली, ये मुझे लगा यही क्लोज वेट होगा, नहीं, यहां पे ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग, ये अलग स्टेट है यहां पे, ठीक है। और जैसे ही इसको ये मिलता है सर्वर को, सर्वर या कि दोनों, सर्वर और क्लाइंट, ये दोनों में से कोई भी यहां पे एक क्लोजिंग से वेट स्टेट में, जैसे इसको मिल जाएगा एसी के, पेंडिंग एसी के इसको मिल जाएगा, ये क्लोज वेट में चला जाएगा, कौन, क्लाइंट। तो ये, और ये सीन और रिसीव्ड में भी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है। साथ में ये जो है ना फिन वेट और टाइम वेट, इसमें भी एक कनेक्शन यहां पे हो सकता है, कम्युनिकेशन यहां पे भी हो सकता है, और यहां पे होगा कनेक्शन, यहां पे होगा। बीच बीच में हो सकता है यहां पे रिसेट भी करना पड़े, तो यहां पे रिसेट, ये मैं जो डॉटेड दे रहा हूं ये दोनों के लिए कॉमन है, क्लाइंट और सर्वर। हो सकता है ये क्लाइंट का है, हो सकता है ये सर्वर का है, तो ये रीसेट हो सकता है यहां पे, और यहां पर भी, यहां पर भी अगर नहीं मिला तो रीसेट करना पड़ता कभी कभी। तो यहां पर ये कौन सा सिग्नल है, आरएसटी रीसेट। तो ये पूरा ये बना हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। सो दिस completes the topic, today's topic. Next time we will see another topic. Okay, so you can mark the attendance now.